Class, hopefully you are doing fine. I'm your chemistry teacher, Miss Bisma, and as you all know that we are discussing our chapter number 11. That one is hydrocarbons, and we covered the few topic of this chapter, like some introduction of alkanes, introduction of hydrocarbons, their importance. And today our topic of this chapter is one of most important long question is the preparation of alkane, in which we prepare how we can prepare alkanes. First of all, the first process for the preparation of alkane is cracking of higher hydrocarbons. Cracking of higher hydrocarbons means the cracking is the process of breaking down large hydrocarbons molecule into the smaller molecule, including alkane and alkene, by the application of heat, pressure, and sometime catalysis. क्रैकिंग ऑफ हाई हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हम क्या करते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द स्मॉलर वंस लाइक अल्कीन. यहाँ पे आपकी बुक में एक प्रोसेस को डिस्कस किया गया है जिसमें उन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में बताया है कि जिसमें हमारे पास नेफ्था जो है आपके पास मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है. अगर उसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट, जो कि आपका एक कैटलिस्ट हो सकता है, आपकी अल्केन की और अल्केन की फॉर्मेशन होगी, जो कि बेसिकली बिकॉज the product they form that contain 5 to 10 number of carbon atoms. And the next process is the reduction of alkene and alkyne. Reduction means the addition of hydrogen, in which alkane can be prepared by the reducing alkane and alkyne with the hydrogen gas in the presence of nickel metal as a catalyst. इसमें क्या होता है, बेसिकली अल्कीन की और अल्काइन की रिडक्शन की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जो कि आपके पास निकल कैटलिस्ट यूज़ होता है, और आपके पास एक सूटेबल टेम्परेचर दिया जाता है जो कि आपके पास यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस है, जो आपकी बुक में मेंशन है. इसमें क्या होता है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ addition reaction. An addition reaction occur when hydrogen is added to an unsaturated compound. Unsaturated compound mean containing double bond or triple bond. इसमें वो आपको बता रहा है कि ये एक addition reaction है, जिसमें क्या होता है कि आप लोग हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हो किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, जो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है. अनसेचुरेटेड कंपाउंड उन्होंने कौन सा लिया है? फर्स्ट वन इज इथीन. इथीन कंटेनिंग डबल बॉन्ड इन विच हाइड्रोजन इज एडेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल and 200 degrees Celsius of temperature, and it will produce ethane. Ethane, that one is saturated compound. It contain a single bond between carbon atom. And the second example is ethine, which containing triple bond between carbon and carbon atom, and in the addition of hydrogen it will produce ethane. That one is saturated alkane or saturated hydrocarbons. And the next process is the reduction of alkyl halide. Alkyl halide means it contain alkyl and halide, mixture of alkyl and halide combined, it is called as alkyl halide. Like zinc, when zinc react with the HCl, it is a alkyl halide, and it will produce a zinc chloride, in which zinc react with the chlorine of the alkyl chloride, and it will produce a zinc chloride, and hydrogen gas is liberated. And in the second reaction is R is basically any alkyl group, R donate any alkyl group, and X represent here, X represent is halide, any halide group. And when it will react with the hydrogen, then hydrogen alkyl react with the hydrogen and halide react with the hydrogen, and it will separately produce alkyl halide. And the next is chloromethane. Chloromethane, when react with the chloromethane,
here is a chloramine, chlorine, and methane is CH3 group, alkane group. When it will react with the alkyl halide in the presence of hydrogen, then it will produce methane, and hydrogen chloride is liberated as a byproduct. So next topic is the important reaction of alkanes. Here is some important reaction of alkane like halogenation and combustion. Here is only two topics that are shown in your book, like halogenation like word denotes that halogenation in which any halogen group are replaced by the hydrogen atom. So let's start. Alkane give the substitution reaction. The reaction which involve the replacement of hydrogen of alkane by an atom like halogen are called substitution reaction. Like substitute मतलब एक चीज़ को replace करना, जैसे कि कोई हेलोजन ग्रुप रिप्लेस कर रहा है किसी अल्केन के हाइड्रोजन को, तो दिस रिएक्शन विल कॉल्ड हेलोजिनेशन, कि मतलब हेलोजन के साथ उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हियर इज एग्जांपल ऑफ द हेलोजिनेशन वेयर इज मीथेन, that is alkane, when it react with the chlorine. So हमने यहाँ पे क्या बताया कि किसी अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हमने हेलोजन के साथ. यहाँ पे क्लोरीन तो एक हेलोजन है, तो यहाँ से Cl2 में से एक क्लोरीन आपका रिप्लेस कर देगा मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन है उनमें से किसी एक हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तीन रह जाएंगे मीथेन के, क्योंकि एक से इसको रिप्लेस करना है ना हमने. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, और आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट हो जाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक step is the next step is the here student the previous step is the product that is formed is chloromethane, like this is this one is a chloromethane. And the next step is when chloromethane is the same reaction, when a chloromethane is react with the chlorine, यहाँ पे भी वो सेम थिंग होगी कि क्लोरीन एक रिप्लेस हो जाएगा मीथेन के एक हाइड्रोजन के साथ, लाइक मीथेन CH3 के एक हाइड्रोजन के साथ. यहाँ से Cl2 में से एक जो क्लोरीन होगा वो आपके पास CH3 के एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, CH2 और Cl2, मतलब डाइक्लोरोमीथेन. डाई वो क्यों कह रहा है कि डाइक्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरीन आपके पास रह गए हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डाइक्लोरोमीथेन. और हाइड्रोजन क्लोराइड वो आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. सो नेक्स्ट अप इज़ ये जो आपके पास दूसरे स्टेप में हुआ था, जो डाइक्लोरोमीथेन आपके पास लिबरेट हुई थी, सेम उसका जब फिर से रिएक्शन करवाएगा किसी भी हेलोजन के साथ, लाइक क्लोरीन के साथ, तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगी कि क्लोरीन ने रिप्लेस करना है मीथेन के एक हाइड्रोजन के साथ. फिर ये क्या करेगा, ये जो आपके पास डाइक्लोरोमीथेन वाला हाइड्रोजन है CH2 Cl2 वाला एक हाइड्रोजन, इसके साथ आके एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा. तो आपके पास प्रोडक्ट क्या रह जाएगा, CHCl3. तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, और जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म. ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास एज अ बाय प्रोडक्ट लिबरेट हो जाएगी. और फोर्थ स्टेप में ये जो आपके पास ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म बची है, इसने फिर से रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन इट विल प्रोड्यूस एज अ, जब Cl2 रिएक्ट करेगा इसके मीथेन के एक ही तो H रह गया आपके पास, एक हाइड्रोजन के साथ जब इसको रिप्लेस कर देगा तो ये सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे. तो आपके पास क्या बन जाएगा, CCl4, जिसको आप लोग कहते हो ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, tetrachloromethane or carbon tetrachloride. So here is a structure formula of the product as shown below. Structure formula mean the product that are produced in this reaction, like methane, dichloromethane, trichloromethane and tetrachloromethane. The first one shows the chloromethane and second one shows the structure formula of, इसमें ये देखें आपको शो कर रहा है कि क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस किया हुआ था.
मीथेन के 4 हाइड्रोजन थे ना, तो उसने क्लोरीन ने आके एक के साथ रिप्लेस कर लिया, एक की जगह क्लोरीन लग गया। और आपके पास डाइक्लोरोमीथेन में आपको डाई से समझ में आ रहा है कि 2 क्लोरीन रिप्लेस हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन की जगह आके 2 क्लोरीन लग जाएंगे। ट्राईक्लोरो में 3 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, टेट्राक्लोरो में 4 के 4 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट important reaction is combustion reaction. Combustion reaction basically is a burning process in which alkane burn in oxygen or air to form a carbon dioxide and water. इसमें क्या होता है कि अल्केन जो होता है वो उसको जलाया जाता है इन द excess of oxygen with the evolution of large amount of heat, और इस प्रोसेस में से बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। आपकी बुक में एग्जांपल शो है कि मीथेन, जैसे वो डेफिनेशन में बता रहा है कि जब किसी अल्केन को बर्न करते हैं इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसकी प्रेजेंस में, तो यहाँ पे मीथेन उन्होंने एक सिंपलेस्ट अल्केन लिया हुआ है। इसको जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या होगा कि जो मीथेन का जो सी ग्रुप है वो आपके पास कार्बन ऑक्सीजन के O2 के साथ आकर रिएक्ट कर लेगा, तो वो आपको CO2 आपके पास मिल जाएगा, और वाटर और हीट है वो आपके पास एज अ बाई प्रोडक्ट लिबरेट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिया हुआ है इथेन। इथेन जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये इथेन में से जो एक आपके पास कार्बन है वो रिएक्ट कर लेगा आपके ऑक्सीजन के साथ, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, और एक्सेस ऑफ हीट और वाटर इस रिएक्शन से आपको रिलीज़ हो जाएगी। और सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर रिटन टास्क, द 3 short question in the reduction of alkyl halide with zinc and this is a HCl. I misplaced this. Alkyl halide is being reduced, which species in this reaction being oxidized? This is your first question. And the second question is, during the combustion reaction of ethane, which bond are being broken and which are being formed? The second question. And the third one is, what product other than CHCl are formed when methane react with chlorine gas? So this is your written task that you are supposed to write in your registers. So if you have any confusion about this topic, then you can ask me freely. So thank you so much.